Welcome to New Era Academy. How are you all? Nice to see you in this video. First of all, I want to congratulate the 10th class students who have successfully completed school education and stepped into college education. In junior college, education in the form of 2-year intermediate course. 2-year intermediate course offers groups such as MPC, BIPC, MEC, CEC, HEC. So today we will discuss about Intermaths. Mathematics is the key subject in 2-year intermediate course for MPC and MEC groups students. Board of Intermediate Education prescribed mathematics syllabus in 2 years course divided into 4 papers in the form of mathematics 1A, 1B, 2A, 2B. For each year, accordingly textbooks also were printed by Telugu Academy. Hence, students are advised to study the books for a good score in mathematics. With a proper study and preparation plan, you can score good marks in the public examinations. So now, we will discuss in this class first year intermediate syllabus of mathematics 1B. Let's start. Intermediate maths 1B first year syllabus, geometry and calculus. Here is the weightage for each chapter in the intermediate maths 1B. So here the first chapter is locus. In locus we are having 4 mark 1 question, then total 4 marks. In chapter number 2, transformation of axis, 4 marks 1 question. Here also same 4 marks. Chapter number 3, straight lines, 7 marks 1 question, 4 marks 1 question, 2 marks 2 questions, total 15 marks. Chapter number 4, pair of straight lines, 7 marks 2 questions, it means 7 2s are 14, total marks is 14. And 5th chapter is 3D coordinates, 2 marks 1 question, so total marks is 2 only. 6th chapter is direction cosines and direction ratios, 7 marks 1 question, so 7 marks. 7th chapter is the plane, 2 marks 1 question, total marks is 2. 8th chapter limits and continuity, 4 marks 1 question, 2 marks 2 questions, total marks 8. 9th chapter differentiation, 7 marks 1 question, 4 marks 1 question, 2 marks 2 questions, total marks 15. Chapter number 10, that is applications of derivatives, 7 marks 2 questions, 4 marks 2 questions, 2 marks 2 questions, total 26 marks. So here the number of 7 mark questions are total 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 4 marks questions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total number of 4 mark questions are 7, and 2 mark questions, that is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total number of 2 mark questions are 10, and total marks is 97 here. So I want to tell you one thing here. In chapter number 10, we are having subtopics of applications of derivatives. We know that applications of derivatives, 7 mark 2 questions, 4 mark 2 questions, and 2 marks 2 questions. So total marks 26. But this chapter is divided in 5 subtopics. The first topic name is errors and approximations. From this topic will get 2 marks 1 question. And second topic is tangents and normals. From this topic will get 7 marks 1 question and 4 marks 1 question. Total marks will be 11. And the third topic is rate measure. From this topic will get 4 mark 1 question. Total marks will be 4. And the fourth topic is mean value theorem. From this topic will get 2 marks 1 question. So total marks here 2.
and the fifth topic, that is maxima and minima, from this topic will get 7 marks, one question, that is 7 marks. So here this chapter is divided into 5 subtopics. So this is here the total marks is also here 26. It means this topics covered total 26 marks. This chapter covered total 26 marks. So we understand here. So we are having total 10 chapters. In this 10 chapters, first 7 chapters are from geometry. First 7 chapters are from geometry and the remaining 3 chapters from calculus. This is your syllabus of Maths 1B. Thank you. So in geometry, we are having the complete total 48 marks, and in calculus, we'll be having total 49 marks. Then 48 plus 49 will be 97 marks. I hope this is helpful to you. Thank you very much. Share it with your friends. If you understood this all concept, please thumbs up. अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो एक लाइक तो बनता है ना यार। वंस सब लोग को इतना तो मालूम हो चुका है कि इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स 1B में हमारे पास 2 पार्ट्स है। पहला पार्ट कौन सा है हमारे पास? पहला पार्ट हमारे पास है जियोमेट्री और दूसरा पार्ट हमारे पास है कैलकुलस। तो जियोमेट्री में हमारे पास फर्स्ट 7 चैप्टर्स है और फर्स्ट 7 चैप्टर्स में फर्स्ट 4 चैप्टर्स हमारे पास 2D जियोमेट्री के हैं, ठीक है, और रिमेनिंग 3 चैप्टर्स हमारे पास 3D जियोमेट्री का है। इतना तो समझ में आ गया। अब फर्स्ट जो चैप्टर था हमारे पास, लोकस जो चैप्टर था, इसमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो टोटल मार्क्स हमारे पास होंगे 4 मार्क्स। सेकंड जो चैप्टर था हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस, इसमें से भी 4 मार्क का एक ही क्वेश्चन, तो इसमें भी हमारे पास हो जाएंगे 4 मार्क्स टोटल मार्क्स। तो थर्ड जो चैप्टर था हमारे पास स्ट्रेट लाइन में से हमारे को 7 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल मार्क्स हो गए हमारे पास 15 मार्क्स। अब अभी ये जो फोर्थ चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इसमें से 2 7 मार्क क्वेश्चंस होंगे। इट मींस 14 मार्क्स टोटल होंगे हमारे पास। और 3D ज्योमेट्री, इसमें जो 5th चैप्टर है 3D कोऑर्डिनेट्स, इसमें से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, तो टोटल मार्क्स होंगे हमारे पास यहाँ पर 2। और 6th जो चैप्टर है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, इसमें से 7 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, तो टोटल मार्क्स हो गए यहाँ पर 7। और 7th चैप्टर जो था हमारे पास द प्लेन, सबसे इजी चैप्टर है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए 2 मार्क्स हो जाएंगे। तो हमारे पास जियोमेट्री में से टोटल क्वेश्चंस 7 मार्क्स के कितने हुए? 4 हो गए। और 4 मार्क्स के कितने हुए? 4 मार्क्स के 3 हो गए। और 2 मार्क्स के कितने हुए? 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस हुए। और टोटल ज्योमेट्री के मार्क्स कितने हो रहे हैं हमारे पास? 48 टोटल मार्क्स हो रहे हैं ज्योमेट्री में से। इतनी बात सबको समझ में आ गई मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट था हमारा कैलकुलस था। कैलकुलस में हमारे पास 3 चैप्टर्स है। कौन कौन से चैप्टर्स है? 8th, 9th और 10th चैप्टर 5 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले 8th चैप्टर पे आएंगे हम लोग। 8th चैप्टर में 4 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल मार्क्स हमारे पास हो गए 8। 9th जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। आपको ये चैप्टर डिफरेंशिएशन आना बोले अगर से तो फर्स्ट ईयर का 1A का ट्रिग्नोमेट्री आपको आना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री अगर अच्छा है आपका 10th क्लास और इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का, तो आप ये अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को 7 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा और 4 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल हमारे पास 15 मार्क्स हो गए हैं। अब जो 10th जो चैप्टर था, 10th चैप्टर मतलब एप्लीकेशंस और डेरिवेटिव्स में टोटल हमारे पास 26 मार्क्स है ये चैप्टर में। अब 26 कैसा है? 5 पार्ट्स में डिवाइड है। किस तरह से देखेंगे? इसमें जो फर्स्ट पार्ट है एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस, ये चैप्टर में से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और सेकंड जो टॉपिक है हमारे पास टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, इसमें से 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, टोटल हमारे पास हो गए 11 मार्क्स। देन रेट मेजर
इसमें से 4 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा तो 4 मार्क्स। और मीन वैल्यू थ्योरम, इसमें से हमारे को 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स। मैक्सिमा एंड मिनिमा से हमारे को 7 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा तो टोटल 7 मार्क्स। तो ये जो पार्ट है, ठीक है ना, ये हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट है। तो इसमें हमारे पास 26 मार्क्स आएंगे। ये 26 और ये प्लस कर दो ये दोनों को, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे टोटल 49 मार्क्स। मतलब हमारे को इतना मालूम हो गया कि कैलकुलस में टोटल 49 मार्क्स है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होंगी शायद सब लोग को। तो यहां पर ये चीजें तो आपको समझ में आ गई। तो टोटल हमारे पास जियोमेट्री में 48 मार्क्स थे और कैलकुलस में 49। टोटल कितने हो गया हमारे पास फिर? टोटल मार्क्स 97 मार्क्स हो गया हमारे पास। मैथमेटिक्स 1B इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर 1B में टोटल 10 चैप्टर्स है। 10 में फर्स्ट 7 चैप्टर्स जियोमेट्री के हैं और लास्ट 3 चैप्टर्स कैलकुलस के हैं। तो ज्योमेट्री में टोटल 48 मार्क्स होंगे और कैलकुलस में 49 मार्क्स। टोटल अगर मैं दोनों को मिलाता हूं तो हो जाएगा ये टोटल 97 मार्क्स। इतना आपको समझ में आ गया? अगर ये सब क्लियर है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो वीडियो आप लोगों ने देखा है इसे शेयर कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। और अगर हम जब भी न्यू वीडियो डालें आपको सबसे पहले देखना है तो इस बेल आइकॉन को क्लिक कर दो और आपके इंटरफ्रेंड्स को घंटी जो दिख रही है इसको दबा दीजिए। थैंक यू। ठीक है, सो विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।